Welcome back to Our News TV and I'm Megha Verma. Let's have a look on a special story. Bhartiyam, an initiative led by like-minded individuals committed to creating a positive impact on the environment and society, proudly hosted Ragas for Yamuna, Edition 3, on a splendid winter evening at the Garden Amphitheatre, Sundar Nursery, Nizamuddin, New Delhi. The event brought together the timeless charm of Indian classical music with the vital mission of environmental conservation, making it an unforgettable night for all who attended. Bharatiyam is an initiative of like minded individuals with a singular objective to make a positive impact on the environment and the society at large. It has been successful in the last few years in creating awareness towards responsible environmental behavior through a novel and engaging process of art and culture infused activities. It has been founded by K.J. Rao, former Secretary, Election Commission, along with Anil Gupta and Srinivas Kotni. The event was graced by the presence of several eminent dignitaries who lent their support to this noble cause. Chief guest Justice D.Y. Chandrachud, former Chief Justice of India, who honored the event with his presence and shared inspiring words about the significance of environmental conservation and cultural heritage. Guest of honor Justice Dr. Mukundakam Sharma, former Judge, Supreme Court of India. Sri Anish, visionary spiritual teacher, humanitarian and founder of Sadhu Sangh Foundation, whose address emphasized the connection between spirituality and environmental responsibility. Dr. Vikas Divyakirti, founder of Drishti IAS Foundation, whose insights highlighted the importance of collective action for social and environmental betterment. Dr. Soumitra Rawat, chairman and head Institute of Surgical Gastroenterology and Liver Transplantation, Sir Gangaram Hospital. Rohan Jaitley, president of Delhi and District Cricket Association, whose presence underscored the role of leadership in fostering community engagement for environmental causes. Basuri Swaraj, member of Lok Sabha, New Delhi constituency and advocate for social change. Captain Vikas Gupta, chairman Uttar Pradesh Agricultural Research Council. The Yamuna River, a lifeline of Delhi, continues to suffer from severe ecological degradation. The serene atmosphere of Sundar Nursery on a crisp winter evening provided the perfect setting for this celebration. The efforts of Bhartiyam members who worked tirelessly day and night to ensure the event's success were evident in every detail, from the enchanting performances to the seamless execution. The event featured captivating performances by Deepak Kshirsagar, Mohan Veena Maestro from Baroda, whose soulful melodies left the audience spellbound. Padma Shri Ustad Anwar Khan, accompanied by his troupe, who brought the vibrant energy of Rajasthani folk music to life. Mitesh Jha, a renowned tabla exponent whose rhythmic brilliance was a highlight of the evening. The star fundraisers were Pankaj Gupta, Dr. Suresh Singhvi, R.P. Mittal, Ashutosh Lohia, Pragyan Sharma, Dr. G.P. Rao, Naresh Mehto, Priya Barjatya, and Rohan Bisht made sure every detail from creative design to the guest list and other arrangement, including stage, food, artist support, and every other detail at the venue, was flawlessly executed. Urge Sunita and the media team for ensuring the event reached a wide audience and garnered the attention it truly deserved. Members S.S. Josan, Achal Mittal, Archana Agnihotri, Harpreet Gupta, Bhanu Pratap Tiwari, Usha Ramaswamy, Glenn Fawcett, Rajesh Mittal, Ramesh Kotni, and many others contributed by being there at every step, offering valuable suggestions and ensuring seamless communication with all stakeholders and motivating and inspiring the team. These projects would not be possible but for the unwavering support of our patrons and donors. Ragas for Yamuna Season 3 was most kindly supported by many corporate entities. Firms and individuals like
Athos Limited, DCM Shriram Group, Armor Security India Limited, Star Cement Meghalaya Limited, Popsons International, Vimal Elaichi, Radico Khetan, Dawar Footwear Industry, Shine Metal Udyog Limited, FIEM Industries Limited, Vinod Mittal Group of Industries, JC Punching Private Limited, Anuti Jewels, DRS Enterprises, Om Traders, Versatile Mentor, Raghunath Udyog, Ashwini Agrawal, Karan Malik, Shafali Gupta, Mukesh Makhija, etc. The success of this event stand as a testament to the power of community action and the harmonious blend of music and environmental advocacy. Bharatiyam invites everyone to join its mission to protect the Yamuna and foster a greener future. Let's have hear what the dignitaries have said about the event. मैं राजेंद्र मित्तल भारतीयम से। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम रागाज फॉर यमुना का 3rd एडिशन करने जा रहे हैं। ये माँ यमुना के ऊपर हमने एक किया है जिससे कि इनकी कंजर्वेशन के बारे में और वो क्लासिकल म्यूजिक के माध्यम से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस करवाई जा सके। जो हमारी ये भारतीयम है ये इससे पहले भी 2 प्रोग्राम कर चुकी है। एक हमने यमुना के किनारे किया था और दूसरा प्रोग्राम हमने वहीं पे किया था। ये तीसरा प्रोग्राम है जो हम ये सुंदरबन नर्सरी में कर रहे हैं। मेरा नाम आशुतोष लोहिया है। मैं वैसे पेशे से अधिवक्ता हूं, लेकिन भारतीयम से जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और ये रागाज फॉर यमुना का संस्करण 3य है। ये तीसरा संस्करण हम रागाज फॉर यमुना आप सबके लिए लेकर के आए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। रागाज फॉर यमुना प्रथम संस्करण में हमें बहुत प्यार मिला, आप सबका बहुत दुलार मिला और रागाज फॉर यमुना 2 संस्करण 2 जो हमने किया था वो कोविड के दौरान किया था और उसको हमने ऑनलाइन किया था। उसमें भी हज़ारों लोगों ने जुड़ करके हमारा बहुत प्रोत्साहन किया और अब हम 3य संस्करण सबके लिए लेकर के आए हैं। इसमें पंडित दीपक क्षीरसागर जी जो हैं वो स्लाइड गिटार पर हैं, पद्मश्री उस्ताद अनवर खान साहब वो राजस्थानी फोक म्यूज़िक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं और पंडित मिथिलेश झा जी तबले पर हमें संगत दे रहे हैं। तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है ये देख करके कि हमें इतना प्यार मिला है सभी लोगों से। और रागाज फॉर यमुना के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये सब भारतीयम द्वारा प्रस्तुति है। भारतीयम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है जिसके तहत हमने बहुत सारे अर्बन फॉरेस्ट्स और अर्बन पॉन्ड्स क्रिएट किए हैं। हमने माँ यमुना की स्वच्छता सफाई के लिए बहुत से लोगों को लगाया है। पहले हमने 2य संस्करण में 1 करोड़ रुपए आप सब के प्यार से इकट्ठा किए थे, जिनको हमने कोविड ऑर्फन्स के लिए, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था कोविड के दौरान, उनके भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए हमने उस पैसे को लगाया था। अब इस बार रागाज फॉर यमुना 3य संस्करण में हम इन सभी आर्टिस्ट्स की मदद से ऑलरेडी 30 लाख रुपए इकट्ठे कर चुके हैं, जिसको कि हम माँ यमुना की रक्षा के लिए, यमुना रक्षकों के द्वारा यमुना की सफाई के लिए और माँ यमुना की रक्षा के लिए इस पैसे को लगाने जा रहे हैं। और इसमें हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा प्रयास है वो यही है कि लोग रागों के ज़रिए अपनी संस्कृति, अपनी कला से जुड़ें वापस। और रागों के ज़रिए हमें ये मानना है कि रागों में इतनी ताकत होती है कि वो सब जीवन का पुनर्निर्माण कर देते हैं। तो इस पुनर्निर्माण के ज़रिए हमारा प्रयास यही है कि लोगों को अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर से दोबारा से पहचान हो और हम लोग इस विषय में जागरूक हों कि हमें अपनी पर्यावरण को, अपनी माँ यमुना को स्वच्छ, निर्मल इसी प्रकार से बहाते रहना है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री धनंजय चंद्रचूड़ साहब सम्मिलित हुए हैं, उन्होंने पूरा समय दिया है। रोहन जेटली जी भी आए थे और बहुत से अन्य गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने हमें सहयोग दिया है, हमें प्यार दिया है और इस सब के लिए हम आप सब के बहुत बहुत आभारी हैं। मेरा नाम हरप्रीत गुप्ता है और मैं भारतीयम से 2017 से जुड़ी हुई हूँ।
हम लोग आज ये इवेंट कर रहे हैं जहां क्लासिकल म्यूज़िक को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा मेन मकसद यही है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें। जैसा आप सब जानते हैं कि आज बहुत ही ज़रूरी है यमुना की सफाई का अभियान सब लोग करें, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स। और आज अगर आप देखेंगे इस इवेंट में मैक्सिमम यंगस्टर्स ने शामिल होकर इसको प्रोत्साहित किया है और हम चाहेंगे जितने भी लोग इस इवेंट में आए हैं और बहुत सारे लोग जो इसके साथ जुड़े वो सब मिलके एक साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरीके से सिखाएं कि हमें कितना ज़रूरी है पर्यावरण को सुरक्षित रखना। और दूसरा एक बहुत बड़ा मोटो हमारा ये भी है इस एनजीओ का कि हम अपने क्लासिकल म्यूज़िक को नहीं भूलें, क्योंकि यह हमारी जान है। तो हम इन रूट्स के साथ जुड़े रहें और इसे आगे बढ़ाते रहें। देखिए, यमुना की सफाई के लिए भारतीय संस्था के द्वारा जो आज जागरूकता अभियान के रूप में यहाँ पर एक सुंदर संगीत संध्या का आयोजन किया गया है। इसमें स्वयं पूर्व मुख्य हमारे न्यायाधीश DV चंद्रचूड़ जी भी आए हुए हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि यमुना से हम सब कुछ देते हैं, लेकिन हम यमुना को क्या देते हैं सिवाय गंदगी का, और क्या देते हैं। तो हम सब लोग भी, यमुना देने वाली हमारी माँ है, तो हम लोगों को भी तो अपनी माँ का सम्मान करना है। उसके प्रति जागरूकता का अभियान फैलाया जा रहा है। मैं टीम भारतीयम के सभी लोगों का विशेष रूप से पंकज जी का बहुत बहुत आभारी हूँ इस सुंदर और सफल आयोजन के लिए। भारतीयम ने ये जो प्रयास किया है बहुत सुंदर प्रयास है। प्रकृति को बचाने के लिए और यमुना नदी को बचाने के लिए जो प्रयास है भारतीयम का, उसके लिए मैं निशिकांत शर्मा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत आनंदित प्रोग्राम, संगीत को प्रकृति के साथ जोड़ा गया है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आए हम अपने परिवार के साथ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार प्रकृति को बचाने का प्रयास होता रहे। जय श्री राम। नई पीढ़ी जो है इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आज शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए आई है, तो शायद ये हमारा धरोहर है और कल्चर के साथ जुड़ी हुई है नई पीढ़ी। देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है भारतीयम का, यमुना बचाओ और यमुना की क्लीनिंग और उसके बैंक्स की क्लीनिंग, ये अवेयरनेस दिल्ली के हर बाशिंदे में हो, तभी जाके ये जो एक भागीरथ प्रयास है वो सफल हो पाएगा। उसके लिए हम सभी का इस यज्ञ में सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। सर, आज की प्रस्तुति के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी युवा पीढ़ी है जो इस प्रोग्राम से जुड़ी है आज। जी, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह पे यंग जनरेशन बहुत कम इन्वॉल्व होती है और 50 के बाद के जो उम्र के जो श्रोता हैं वही हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जब म्यूज़िक और प्रकृति जब एक साथ हम मिलते हैं, किसी इनिशिएटिव को साथ लेके काम करते हैं, तो उसमें यंग जनरेशन की भागीदारी बहुत ही कमाल की बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। 50% से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो बहुत अच्छे से क्लासिकल म्यूज़िक सुन रही थी। मेरा नाम श्री अनीश, मैं हिमालय से आया हूँ। भारतीयम संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। 5 ही तत्व हैं जो मनुष्य के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें से जल तत्व एक है। सो भारतीयम जो जल तत्व यानी यमुना नदी के संरक्षण के लिए काम कर रही है, मेरा बहुत बहुत आभार भारतीयम को इसके लिए। और उसके साथ साथ उन्होंने जीवन का रसा यानी रागों को भी नदी की चेतना को जगाने के लिए जोड़ दिया। मुझे लग रहा है बहुत अद्भुत प्रयास हुआ है, ये अद्भुत आविष्कार हुआ है जहाँ रसा को तत्वों के साथ जोड़ा गया है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरा बहुत बहुत आभार भारतीयम को इस अद्भुत इनिशिएटिव के लिए। My name is GP Rao. I am the Vice Chairman of भारतीयम। भारतीयम एक ऐसा संस्था है पिछले 17 साल से प्लांटेशन एंड क्लीनिंग ऑफ रिवर बॉडीज़ का काम पे जुड़ा हुआ है। और ये रागास फॉर यमुना आज का जो थर्ड सीज़न 3 आज हो रहा है सुंदर नर्सरी में। ये हम लोग पहले यमुना किनारे में किए थे, कोविड में ऑनलाइन में किए थे। इसका जो पर्पज़ है, मकसद है, माँ यमुना की याद किया जाए और एक रागास के जरिया से, एक संगीत के जरिया से किया जाए। हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक और बार एनवायरनमेंट का बारे में, प्रकृति के बारे में, यमुना का बारे में, पानी के बारे में, भगवान के बारे में दोबारा सोचे
और हम लोग सब अपना अपना क्षेत्र में तो आज का जो कार्यक्रम में हम लोग म्यूजिशियंस को इनवाइट किया है राजस्थान से, गुजरात से, बिहार से, और आज का हमारा मुख्य अतिथि है हमारा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब है और श्री अनीश धर्मशाला से पधारे हुए हैं। बहुत सारे लोग इस मिशन में शामिल हुए हैं, अपना आहुति दे रहे हैं और ये पूरा कार्यक्रम में हम सब म्यूज़िक संगीत की आनंद लेंगे और माँ यमुना की आनंद उनका यादगार में उनको दोबारा हम उनको विनती दे कि कृपा करें और हमारा देश का भला हो, दिल्ली का भला हो। और जैसा कि ये 3rd एडिशन है तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इस काम को शुरू करने के लिए? सर, हमारा जो भारतीयम का मकसद है प्लांटेशन एंड क्लीनिंग ऑफ रिवर बॉडीज़ है, तो हम यमुना सफाई में कुछ काम शुरू किया थे। तो हम सोचे कि यमुना का बारे में एक जागृति चाहिए, तो एक अवेयरनेस चाहिए। तो अवेयरनेस का एक माध्यम हम देखे हैं, लोगों को एकत्रित करना है। हम देखे कि संगीत एक ऐसा काम है और ऐसा एक मंच है, वहाँ पे लोग एकत्रित हो सकते हैं। संगीत के जरिए में हम एकत्रित करके फिर हम माँ यमुना की याद कर रहे हैं और ये अवेयरनेस का हम ये जो भी हमने आज कार्यक्रम किया है, इसमें कुछ पूंजी हमारा जो सरप्लस रहेगा उसमें हम यमुना सफाई का काम पे, यमुना का प्रोटेक्शन का काम पे और लोगों को अवेयरनेस लाने के काम पे हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा मकसद है, ये हमारा योजना है। श्रीनिवास कोटनी, जनरल सेक्रेटरी भारतीयम। आज हम यहाँ पे सुंदर नर्सरी पे रागास फॉर यमुना 3rd एडिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हम हर सीज़न में सेलिब्रेट करते हैं टू शो आवर रिगार्ड टू माँ यमुना एंड ऑल्सो हम क्या यूज़ करते हैं, हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो बडिंग आर्टिस्ट हैं और पहुँचे हुए कलाकार हैं उनको बुलाते हैं और लोगों को उनकी जो हमारी कला है, कल्चरल हेरिटेज है, उसका प्रदर्शन करते हैं। तो इसे फंड रेज़र भी है हमारे लिए। इस फंड से हम अर्बन फॉरेस्ट बनाते हैं, हम प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं, हम कोविड ऑर्फन्स को सपोर्ट करते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो दिल्ली में, NCR में, दिल्ली के बाहर भी हम करते हैं। तो ये फंड रेज़र हमारे लिए हर साल एक एक्साइटमेंट रहती है हमारे लिए और हम इसको बहुत शिद्दत से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमारे मेंबर्स बहुत इन्वॉल्व होकर करते हैं और काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं, डोनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, पैट्रन्स हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो सब आज देखिए मतलब बहुत सुंदर अरेंजमेंट्स हैं और ये जगह भी बहुत सुंदर है और नेचुरल नाम भी सुंदर है, सुंदर नर्सरी है। आपने बताया 3rd एडिशन है, पहले 2 एडिशन कहाँ पे हुए? हाँ जी, फर्स्ट सीजन। तीसरा एडिशन में क्या खासियत बढ़ी? हाँ जी, फर्स्ट सीज़न जो हमने जो रुकी स्टाइल में यमुना बैंक्स पे किया था 2 कोविड्स के बीच में, तो वहाँ पे करीब 500 लोग टर्नआउट था। वो बहुत अच्छा इवेंट रहा। तो ये करके फिर नेक्स्ट ईयर हमने ऑनलाइन इवेंट किया एज ए कोविड केयर कंसर्ट। उसका जो फंडिंग जो हमने इकट्ठा किया था वो कोविड ऑर्फन्स के एजुकेशन के लिए हमने खर्चा किया। तो इस तरीके से हमने हमारे काफ़ी सारे सीनियर मेंबर्स थे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके काफ़ी डोनेशंस और काफ़ी कंट्रीब्यूशंस इकट्ठे किए थे। उसी दौरान मतलब उसी सीरीज़ में ये 3rd सीज़न है। तो इस बारी देखिए कि आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, ज़्यादा वॉलंटियर्स भी हमारे पास हैं और ज़्यादा डोनेशंस भी मिले हैं, फ़ंड भी अच्छी खासी रेस हो रही है और हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगा इससे। और ख़ासकर ये जो क्लासिकल म्यूज़िक है, बोथ इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल, जो ख़त्म हो रहा है आजकल इंडिया में, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा, नई जनरेशन भी देखेगी। और एक विंटर इवनिंग है जनवरी की, तो बहुत सौंधी सी जो बोलते हैं, जो एकदम ठंड है। इस ठंड में म्यूज़िक का आनंद लेना अलग ही एक लेवल का भाग्य है लोगों के लिए। That's all for now. For more updates, subscribe the Even News TV. Thank you.